Hello, and welcome to the last part of our discussion on fallacies. So, today we will be discussing the fallacies of ambiguity. As we have discussed, that there are four types of fallacies in our course: the relevance, the defective induction, the presumption, and the ambiguity. So, sorry, we have discussed the first three fallacies in the last two lectures. So, we are discussing the fallacies of ambiguity which are there in our course, and they are five in numbers, as you can see. Now we will take each one of them. We will also try to understand what this fallacy is all about. But before that, let us try to understand that what is ambiguity and how these fallacies occur. Basically, all these fallacies which are coming under the head of ambiguity are having more than one meaning. Like when we will be talking about equivocation or amphiboly, accent, composition, or division, the way something has been expressed and the way it has been taken are not exactly the same. First thing. Second thing, the expression is ambiguous by nature. It may have more than one meaning. तो होता क्या है कि किसी एक सेंटेंस को हमने बोला या किसी एक स्टेटमेंट को बोला तो उसके एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं. इट कैन बी बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस, कि बिकॉज ऑफ अ वर्ड और फ्रेज हो सकता है, बिकॉज ऑफ एन एक्सप्रेशन हो सकता है, बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ मुहावरे एंड लोकतिया हो सकती है ना, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ इडियम्स, देन ऑल्सो देर आर सम प्लेस स्पेसिफिक यूसेजेस. तो उसके कारण भी बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार किसी ने एक चीज को बोला एक तरीके से और उसका मीनिंग जो है वो दूसरे तरीके से आया, या हमको क्योंकि उनके कल्चर के बारे में नहीं पता या उनके वे ऑफ एक्सप्रेशन को नहीं जानते हम, तो हमने उसको दूसरे तरीके से ले लिया. And that creates like a misunderstanding. Sometimes also it becomes scandalous or it becomes a problematic proposition. Sometimes even illegal, unlawful चीजें भी हो जाती हैं इस तरीके से. But actually होता क्या है कि human beings and natural language is not very logical, or I may not say this thing that it is very logical. Rather than I will say that it is not very unambiguous by nature. इट मे हैव मोर मीनिंग्स, है ना. और ऐसे भी जो पूरा फन है या पूरा पन है एंड जो ह्यूमर है, जो सरकाजम है, जो सटायर है, वो इसीलिए तो डेवलप होता है बिकॉज आई से इट इन वन वे, यू कैन पिक इट अप इन अनदर वे, है ना. और आई सेड इट इन वन वे, यू पिक्ड इट अप इन द सेम वे, बट स्टिल देयर वाज ह्यूमर, राइट. होता है ऐसा. तो वॉट एवर, so we will try to understand. Now the first fallacy which we will be discussing is the fallacy of equivocation. Equivocation का basic मतलब होता है कि एक word है या एक phrase है, उसके एक से ज्यादा meanings है. तो if it has more than one meaning और एक तरीके से उसके premise में use किया गया है और दूसरे तरीके से उसके conclusion में use किया गया है, तो you will always find that this kind of fallacy will occur. So it is easy to understand कि जो premise है और जो कंक्लूजन है, लाइक हमने वो लिविड वाला एक्सप्रेशन यूज किया था लंदन में, चाय वाला एग्जांपल जो यूज किया था. या सपोज इफ आई यूज दिस वर्ड बैट, नाउ वी नो बैट हैज मोर देन वन मीनिंग, राइट. बैट इज ए मैमल जिसके कारण से कोविड चल रहा है, या सो ऑन. एंड बैट इज डेफिनेटली ऑल्सो फॉर दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो कि क्रिकेट क्रेजी पब्लिक है, उसके लिए बैट का मतलब क्रिकेट बैट से ही होता है ना. तो वी डू नॉट नीड टू इवन स्पेसिफाई व्हाट बैट, इट इज क्रिकेट बैट. तो एक जगह पे बैट एज अ विलो क्रिकेट बैट के फॉर्म में यूज किया गया, दूसरी जगह एज अ मैमल चिंगादड़ के हिसाब से यूज किया गया. तो इट मे हैव लाइक दिस. सिमिलरली कभी कभार फ्रेजेस होते हैं, है ना. तो फ्रेजेस एक तरफ एक जगह उसका एक मीनिंग होता है, लिटरली उसका मीनिंग अलग होता है. लाइक स्लीपिंग विद समवन, है ना. So you sleep with someone is one kind of understanding and you sleep with someone is another kind of understanding as well. तो premise में एक तरीके से यूज किया गया, conclusion में दूसरे तरीके से यूज किया गया. Once it was used as a phrase, the other one place was a literal meaning. तो there can be a mismatch of understanding और उसके कारण से the conclusion which you are coming out with is not the right expression. तो इस तरीके की चीजें जो है equivocation में होती है. तो अगर वर्ड या फ्रेज के साथ आपने कंफ्यूजन यूज किया है, मतलब या कंफ्यूज हुए हैं, तो इक्विवोकेशन की फैलेसी होती है. एम्फीबोली कहते हैं बेसिकली लूज ऑकवर्ड मिस्टेकन वे इन विच वर्ड्स आर कंबाइंड, है ना. कभी कभार क्या होता है कि हम जिस तरीके से किसी चीज को बोलते हैं, या कभी कभार पंचुएशंस के कारण भी होते हैं ये, तो हम किसी तरीके से किसी चीज को बोलते हैं तो उससे एग्जैक्टली मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता है. लाइक आपके बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया गया है कि सम लॉर्ड
some lord or somebody, some millionaire billionaire person, along with his wife. Like suppose X is a billionaire or X is a millionaire person or X is a lord during the so-called English regime or something like that. तो उन्होंने क्या किया कि he along with his wife has donated say some amount of money to say for the benefit of the children, है ना, या कोई अनाथ आश्रम को दे दिया, किसी चीज को दे दिया. तो उसके बाद कंक्लूजन ये निकला कि सो ग्लोरिया इज टैक्स डिड्यूसिबल. दैट मीन्स कि उसकी बीवी भी जो है टैक्स डिड्यूसिबल हो गई है ना, बिकॉज कि अगर उसकी रीडिंग आप देखो तो मतलब कि ही अलॉन्ग विथ हिज वाइफ हैज डोनेटेड लॉट ऑफ मनी टू दी से चिल्ड्रन फंड. तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि ही हैज डोनेटेड हिज वाइफ एज वेल ना. ऐसे तो ये किसी भी मैरिड पर्सन का सपना होता है, मतलब स्पेशली अ मैरिड मैन, कि इफ ही कैन डोनेट समबडी हिज वाइफ. बट उस केस में उसको टैक्स से भी जोड़ा गया था. सो दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग. एंड इफ यू अंडरस्टैंड दैट इट इज प्रिसाइसली हैपनिंग बिकॉज द एक्सप्रेशन कैन नॉट बी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड कि वो बोल क्या रहे हैं, है ना. अभी जब आईपीएल चल रहा था, आई विल नॉट लाइक टू ब्रिंग दैट थिंग अप, बट आईपीएल चल रहा था तो गावस्कर ने एक कमेंट मारा था विराट कोहली के ऊपर और अनुष्का के ऊपर, तो उस पर भी काफ़ी बवाल मचा था, है ना. तो इस तरीके के एक्सप्रेशंस जो हैं वो कभी कभार पंचुएशन इक्विवोकेशन में जाते हैं, कभी कभार एम्फिबोली में जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन. यहाँ पे वर्ड या फ्रेज का एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे जो है जो पूरा का पूरा सेंटेंस है उसको दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है. या जैसे पंचुएशंस का, पंचुएशंस आप समझ सकते हो. लाइक यू मस्ट हैव हर्ड दिस वन ना, रोको मत जाने दो, है ना. ये वाला एक्सप्रेशन आपने सुना होगा ना. तो इसमें अगर रोको के बाद कॉमा लगा देंगे तो रोको मत जाने दो, और अगर मत के बाद लगाएंगे तो रोको मत जाने दो. टू डिफरेंट मीनिंग्स ऑल टुगेदर, इवन इफ दे आर हैविंग द सेम वर्ड कॉम्बिनेशन. वर्ड कॉम्बिनेशन जो है सेम है ना. इस तरीके से एक एक्सप्रेशन और भी आया था कि सो देयर वाज दिस एक्सप्रेशन दैट इसको पंचुएट करने के लिए दिया गया था, और कहा गया था कि अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग. तो इसको पंचुएट करिए, है ना. इसमें कहीं पे भी कॉमा, सेमीकोलन, ये वो कुछ भी लगाइए, और इसको पंचुएट करके इसको प्रॉपर एम्बिगुअस अनएम्बिगुअस एक्सप्रेशन बनाइए. तो ये वाला एक्सप्रेशन बनाने के लिए दिया गया. तो जितने भी क्लास में लड़के थे उन्होंने लिखा अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, है ना. मतलब कि वुमेन विदाउट हर मैन के बाद कॉमा लगाया. लेकिन जितनी भी लड़कियां थी क्लास में उन्होंने ऐसा लिखा अ वुमन विदाउट हर अ मैन इज नथिंग, है ना. तो एंड बिकॉज ऑफ द पंचुएशंस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस चेंज्ड, है ना. तो इस तरीके की चीजें जो हैं, अगर आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं, अगर उसमें प्रॉपर पंचुएशंस नहीं है और आप उसको प्रॉपरली पंचुएट कर रहे हैं, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के कारण भी एम्फीबोलीज होती हैं. एनीवेज, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं वर्ड्स और फ्रेजेस और एम्फीबोलीज में, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है. लाइक यू माइट बी नोइंग अबाउट कॉकटेल्स. कॉकटेल्स जो हैं वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड, कॉकटेल्स और मॉकटेल्स जो हैं बहुत ही एग्जॉटिक नाम से आते हैं ना. एंड दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ वेरी इरोटिक एक्सप्रेशंस एंड दिस एंड दैट. तो उसमें भी ऐसा होता है कि कभी कभार ऐसे वर्ड्स और ऐसे सेंटेंसेस बन जाते हैं जिसके कारण से जो है एम्फीबोली हो जाता है, या कभी कभार इक्विवोकेशन हो जाता है. जैसे इफ यू फाइंड दिस एक्सप्रेशन लाइक दैट शी हैड सेक्स ऑन द बीच विद ब्लडी मेरी, तो देयरफॉर शी इज लेस्बियन. तो यू विल बी फोर्स्ड टू थिंक कि क्या बोला जा रहा है, या क्या सोचा जा रहा है ना. या बट इफ यू डू नॉट नो द नेम्स ऑफ द कॉकटेल्स देन यू विल हैव प्रॉब्लम्स विद दिस अंडरस्टैंडिंग. और शी गेव हर अ ब्लो जॉब, सपोज इट दिस इज सेड. सो दिस इज ऑल्सो वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग. ऐसे एक्सप्रेशंस जो हैं काफ़ी प्रॉब्लमैटिक लगते हैं, बट ऐसे एक्सप्रेशंस भी होते हैं, है ना. और अगर आपको पता नहीं है तो यू विल बी सेइंग दैट कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल इवन, है ना. बट द ट्रुथ इज दैट ऑल दीज नेम्स आर बेसिकली द नेम्स ऑफ कॉकटेल्स, और इसी कारण से आप कंफ्यूज कर रहे हो विद वर्ड, फ्रेज एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट. सो कभी वर्ड या फ्रेज में एक्सप्रेशन होता है, कभी लूजली या पंचुएशंस के कारण जो है प्रॉब्लम्स होती हैं. तो इसके कारण से इक्विवोकेशन या एम्फीबोली की फैलेसीज आती हैं. अब आते हैं एक्सेंट की फैलेसी पे. एक्सेंट की फैलेसी जो होती है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिक. वेरी डिफिकल्ट टू पिक इसलिए क्योंकि यू डू नॉट नो अबाउट द एक्सेंट ऑफ अ पर्सन, और वो लोग कहीं पर कुछ तरीके से बोलते हैं. जैसे जम्मू में आपने देखा होगा कुछ प्रॉपर एक्सप्रेशंस हैं जिसका कि कोई मतलब दूसरे लोग जो है नहीं समझ पाते. फॉर दैट मैटर कोई बात नहीं, है ना.
तो कोई बात नहीं इज एन एक्सप्रेशन जो कि ऑल ओवर इंडिया एक तरीके से यूज होता है, जम्मू में उस तरीके से यूज होता है। या कोई चीज़ पीछे से ही नहीं आ रही है ना, तो कोई भी चीज़ पीछे से नहीं आती, आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो है वो अपने ओरिजिन से नहीं आ पा रही है, तो उसका और डायरेक्शन की पीछे से नहीं आना आर टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। अगर आप उसको समझे तो उसमें काफ़ी मजाक भी बनता है ना। तो इस तरीके की चीज़ें भी है। तो इसी तरीके से आप कहीं पे जैसे सपोज महाराष्ट्र जाते हैं, तो महाराष्ट्र में जो है एक्सेंट इस तरीके से होता है कि जैसे अगर आप किसी से प्लेस पूछे कि भाई किसी से पूछे कि भैया ये गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो वो ऐसे नहीं बोलेगा कि यहाँ है या इस तरफ जाइए, सीधे जाइए या ऐसे करके जाइए, वो ऐसे बोलेगा वो क्या है सामने, है ना। सो दैट एक्सप्रेशन कम्स, है ना, वो ऐसे बात करते हैं। या हमारे भोपाल में आइए कभी, तो भोपाल में तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या चीज़ें बोली जाती है ना। तो वहाँ पे कोई भी पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा पतला होगा, है ना, काफ़ी लाइट वेट होगा, उसके लिए सबसे क्लियर एक्सप्रेशन यही होता है कि कोई भी अगर आदमी होता है तो उससे ऐसी पूछते हैं, और पहलवान, है ना, तो वो ऐसी बात करेंगे हमेशा आपको, है ना। तो ये बेसिकली आपको जो है पहलवान नहीं बोल रहे हैं, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। अगर किसी को भी आप पहलवान बोल रहे हैं भोपाल में, और पहलवान तो पहलवान होता ही नहीं वहाँ, वो पहलवान होता है ना, वहाँ पे होता है वो पहलवान क्या आवे, है, तो इसका मतलब ये कि आपका मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं और आप पहली बार भोपाल विजिट कर रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि पहलवान हो गए हैं आप, है ना, या पहलवान बन गए आप। तो इस तरीके के एक्सप्रेशंस जो हैं, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। ये जो है एक्सेंट की प्रॉब्लम होती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बोला जाता है, एक्सेंट होता है उसका, है ना। तो उसके कारण से भी कभी कभार हम मीनिंग को प्रॉपरली पकड़ नहीं पाते। तो ऐसी एक्सप्रेशंस को जो है हम एक्सेंट की फैलेसी कहते हैं। कॉम्पोजिशन और डिवीजन फैलेसीज बेसिकली रिलेटेड फैलेसीज है। तो जैसे कि हमने इसके पहले भी वी हैव स्टडीड से फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट एंड फैलेसी ऑफ हिस्ट्री जनरलाइजेशन, अगर आपको याद हो तो वो भी एक दूसरे की कन्वर्स थी, ये भी एक दूसरे की कन्वर्स है। कॉम्पोजिशन में क्या होता है कि कोई एट्रीब्यूट है पार्ट का, उसको होल में भी डाल रहे हैं। जैसे कि अगर वाटर है, तो वाटर इज बेसिकली ए लिक्विड, लेकिन वाटर बनता किससे, दो टाइप के गैसेस से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर आप ये मान लें कि वाटर जो है, जो कि होल है, ठीक है, और उसके पार्ट्स जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, कि इफ वी टेक इट एज तो अगर हम ये वाला एक्सप्रेशन लेते हैं, तो इसमें जो है क्या बोलते हैं, आपने माना कि ये गैस है, ये गैस है, तो इसको भी गैस होना चाहिए। नाउ दिस फैलेसी, है ना, कि जो पार्ट के एट्रीब्यूट्स हैं इसको होल के एट्रीब्यूट्स में डालेंगे, दैट विल बिकम द फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। सिमिलरली अगर आप होल के एट्रीब्यूट्स, इसी का जस्ट ऑपोजिट देख लीजिए, है ना, तो ये तो ऐसे बनाता है, अब इसकी प्रॉपर्टी यानी कि लिक्विड है ये, तो इस लिक्विड वाली प्रॉपर्टी को माने कि क्योंकि इट्स अ लिक्विड एंड इट इज फॉर्म बाय ऑक्सीजन एज वेल एज हाइड्रोजन, तो हम इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी जो है लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं एट रूम टेम्परेचर। अगर ये सोचने लग जाए तो दिस विल बी ऑल्सो द प्रॉब्लम। इसी तरीके से हमने इसके पहले एक तरीके की फैलेसी और भी पढ़ी थी ना, जैसे ये जो कॉम्पोजिशन सॉरी एक्सीडेंट और हिस्ट्री जनरलाइजेशन की फैलेसी थी। तो ये भी है कि कभी कभार हम जैसे कि बहुत सारे लोगों से अगर कोई चीज़ बनी है, तो वो बहुत छोटी छोटी उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, हालांकि एक्सीडेंट और जो ये वाली फैलेसी थी, आपकी हिस्ट्री जनरलाइजेशन की फैलेसी थी, ये भी कन्वर्स है एक दूसरे की, ये भी इसी तरीके की प्रॉपर्टी को बताने की कोशिश करते हैं। इट इज दिस फैलेसी विल बी मोर विद द लिंगुअल एक्सप्रेशन, एम्बिग्विटी के साथ डिपेंड करेगा कि आप एम्बिगुअस हो जाते हैं कभी कभार एक्सप्रेशन में। जैसे कि अगर हम ये बोले कि यूनिवर्सिटी ऑफर्स हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज इन द सेमेस्टर एंड स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज इन अ सेमेस्टर, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बच्चा जो है 100 कोर्सेज कर रहा है पर सेमेस्टर, है ना। तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अलग अलग बच्चे मिला के अगर देखें तो हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज, या आपके सपोज वंस यू विल बी इन थर्ड ईयर और सो यू विल सी दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ इलेक्टिव्स। तो एक सेमेस्टर में जो है टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज विच विल बी ऑफर्ड will be say 18 or 20 and out of them you are say taking only 6 or 8 courses। तो ऐसा लगेगा कि कोई बोले कि कंप्यूटर साइंस को या इलेक्ट्रिकल को या मैकेनिकल को, किसी को भी जो है हमने 16 कोर्सेज ईच ऑफर किए हुए हैं, है ना, तो लगेगा कि बच्चे 16 कोर्सेज पर सेमेस्टर कर रहे हैं, विच विल नॉट बी द ट्रूथ, राइट। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन, इस तरीके से बच्चा कुछ इतने से ही कोर्सेज कर रहा है तो बस इतने ही कोर्स पढ़ा रहे हो, तो नहीं, ग्रुप में जो है ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग्स जो है ये कॉम्पोजिशन और डिवीजन में आती है।
तो we will be taking all these things in the class. More and more examples will be taking, and we will try to understand that how to grasp, है ना, कि fallacy को कैसे निकालना है या कैसे समझना है. That will be a important exercise for us. So come prepared to the class. Thank you.